Alright, so hey there guys, once again welcome back to the another live session of Quarantine Nights with Anchor Shreya. So I am back with another live session and guess what? आज हमने एक अलग और डिफरेंट सेशन आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट इज कुकिंग. सो कुकिंग इज समथिंग विच वी यूजुअली डोंट टॉक अबाउट. कुकिंग के बारे में इज द लीस्ट टॉक्ड सब्जेक्ट. सो देयर आर नॉट पीपल हु टॉक फ्रीक्वेंटली अबाउट कुकिंग और कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं. बट टुडे आई एम गोना ब्रिंग यू अप some amazing session throughout this amazing time. 1 घंटा non-stop we'll talk about cooking, taste buds and all with the things which are related to cooking. So cooking से related जो भी चीज़ें होगी, नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार. So cooking से related जो भी चीज़ें होगी आज हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बिकॉज कुकिंग के बारे में कोई यूजुअली बात नहीं करता है. नहीं, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो भी सोच रहे होंगे oh my god this is not my session, okay let me call my mom. So guys please at the end of the day we have to cook some of the other things. At least आप सीख कर अपने घर वालों को खिला सकते हैं, अपने फैमिली को खिला सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, your loved ones. So whenever we visit any hotel, what we do is we look for the most delicious dish. और जो भी हमारे पास जब वो डिश आती है उसका अपीयरेंस, उसका टेस्ट सब कुछ देखकर वी फील सो गुड. सो व्हाट आई बिलीव इज अ गुड फूड इज अ गुड मूड. सो इफ यू वांट टू बी इन अ गुड मूड यू हैव टू ईट अ गुड फूड. अब गुड फूड खाने के लिए यू कैन ऑलवेज डिपेंड ऑन अ शेफ. इफ देयर इज नो शेफ, अब क्वारंटाइन के डेज में वी कैन नॉट विजिट अ होटल. सो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? हम घर पे रहेंगे, नए नए डिशेस सीखेंगे और खुद बना के खुद खाएंगे. I mean हमारे फैमिलीज को भी खिलाएंगे. So it's very important that we learn cooking and indulge into new activities because अभी हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं. So why not let's do this. Let's give relief to our moms and ask her कि you sit back, relax and let me do it for you. और जब आप वो बनाओगे, trust me, people are gonna love it. Your family members, even you are gonna love it. You don't know how good it feels when you cook. There are people जिनको कुकिंग करना बिल्कुल ही नहीं पसंद. Like me, I hate cooking, but still I love eating. As you can see, I have gained a lot of weight. Maybe I believe 5 किलो बढ़ गया मेरा. So this is all because of cooking. So if we all want to live healthy, live happy, so we should indulge into new activities. We should learn. Learning is good. Whatever field that is, learning is good. So अब हमारे बीच आने वाली है वो जिन्होंने कुकिंग में मास्टरी की हुई है, जो एक बहुत ही अच्छी शेफ है, एक बहुत ही अच्छी कुक है, जिनके सारे डिशेस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जिन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है. ओ माई गॉड, आई कैन इमेजिन, मुझे सोचकर भी पानी आ रहा है मुंह में. गॉड, आई लव ईटिंग. सो ऐसे टाइम पर क्वारंटाइन की डेज में जहाँ कुकिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट एस्पेक्ट हो गया है हमारे लाइफ का, ऐसे में अगर कोई ऐसा पर्सन जो कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो वो अगर आपको आके टिप्स दे तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा. सो गाइस, today we have this very amazing person coming live and loud with us only and only at Quarantine Nights with Anchor Shreya. So today we are going to talk more and more about cooking and its taste. So today we are going to talk about food and only food. So there's only three things which we live for: cooking, eating and cooking. So हमें खाते रहना है, मुस्कुराते रहना है और खुश रहना है. So अब हमारे बीच आ रही है नेहा अग्रवाल, who is a very amazing cook, a very amazing chef, and also she is a beauty expert. So maybe I can also get some help. So if anybody of you wants any help related to beauty tips or cooking, you can surely ask and comment down below in the comment section, and she is definitely gonna answer those. And trust me, today's session is gonna be blast. So आज हम लोग कुकिंग के बहुत सारे नए नए एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, कुकिंग के बारे में जानेंगे, टेस्ट के बारे में जानेंगे, क्यों हमें टेस्टी खाना खाना चाहिए. Alright, so I'm gonna join her in and let's roll. हाय, कैसे हो आप? मैं बढ़िया. आप कैसे हो? और बताइए, बढ़िया हूँ. कैसा जा रहा है आपका क्वारंटाइन? एकदम मस्त चल रहा है क्योंकि काफी डिफरेंट हो गया. एक चेंज मिल गया लाइफ को. रूटीन वर्क से थोड़ा सा हटके हो गया. बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है. और चेंज तो हर किसी को अच्छा लगता है अपनी लाइफ में. आई थिंक जो चेंज बिल्कुल.
सो आप अपने इन क्वारंटाइन डेज में हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी घर में कर रहा है, कोई ना कोई अपने पेंडिंग काम जो है लोगों के वो कंप्लीट कर रहा है। आप इन क्वारंटाइन डेज में क्या कर रही हैं? सेम, जैसे कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, थोड़ा डिफरेंट टाइम मिल गया, लेकिन लेडीज को आई थिंक मुझे लगता है इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला है जितना जेंट्स को मिला है, क्योंकि लेडीज का लोड आई थिंक बड़ा है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो डिमांड बड़ी है सबकी, कुछ अच्छा खाने को चाहिए, एंड एक टाइम नहीं, तीनों टाइम चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, और कभी कभी होता है कि अपनी लिस्ट भी खत्म होने लगती है कुछ अच्छा देते देते, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है लॉकडाउन में, तो हाँ चल रहा है, एंड कुछ न्यू और क्रिएटिव करने का मौका मिल रहा है, सबसे अच्छी बात है। अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो हमेशा सोचते थे कि करेंगे कभी, वो अच्छा है। ऑलराइट, आपके 3,86,000 सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पर, आपको कैसा फील होता है? काफी अच्छा लगता है जब आपको इतने सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको देखते हैं, आपको प्यार देते हैं, फिर आपको कमेंट भी करते हैं, एंड उसमें भी बहुत सारे कमेंट होते हैं जो आपको काफी अप्रिशिएट करते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और आपको लगता है कि यार इतने सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, तो जब भी कोई आपको अप्रिशिएशन मिलता है आपको हमेशा बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कहीं से भी हो। डेफिनेटली, एंड मैंने तो सुनता भी नहीं था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था कि इतने सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और इतने सारे मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स बन जाएंगे, फैमिली बनेगी मेरी इतनी बड़ी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। हेलो पूजा। सो नेहा जी, ऐसा कहा जाता है कि जो खाना बनाता है उसे खाना बनाने से ज्यादा दूसरों को खाना खिलाने में ज्यादा खुशी मिलती है, क्या ये बात सच है? आप इसे मानती हैं? हाँ जी, डेफिनेटली मैं ये बात मानूंगी, क्योंकि जब आप खाना तैयार करते हैं तो उसमें काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है, और यदि कोई उस खाने को अच्छे से ना खाए या फिर कोई खा के तारीफ ना करे तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आप खुद बना के भी खुद खा लो, आपको कोई मजा ही नहीं आएगा, जब तक आप कोई बोले नहीं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है, तब तक कोई फायदा नहीं है उसे बनाने का। एंड आपने भी देखा होगा कि आप कुछ भी बनाओ तो मिनिमम 20-25 मिनट या फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा। गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं? आप इतने नए नए डिशेस बनाती हैं, आप अलग अलग नए नए डिशेस बनाती है नेहा जी, सो आपका आपका गैस सिलेंडर कितनी जल्दी खत्म होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप किसी न किसी चीज को रिप्लेस करते हो, वैसे कुछ और खाओगे, और जब आप कुछ बनाओगे तो आप वो खा लोगे, बस थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेट आपका उतना ही बड़ा होता है, चाहे आप ये खाओ चाहे ये खाओ, तो कुछ ना कुछ तो खाओगे। सही बात है। नेहा जी, तो आपको नेहा जी गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैं भी यही बोल रही थी कि गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं। तो गुलाब जामुन आप कई सारे तरीके से बना सकते हैं, जैसे आप खोए का गुलाब जामुन बना सकते हैं, मिल्क पाउडर का गुलाब जामुन बना सकते हैं, ब्रेड का गुलाब जामुन बना सकते हैं। यदि आप किसे बना रहे हैं तो काफी इजी तरीका होता है। आपको खोया लेना है और उसमें मैदा मिक्स करनी है। यदि आप 250 ग्राम खोया ले रहे हैं तो मेजरमेंट वाले कप से आप मैदा डालेंगे उसमें, और बिल्कुल चुटकी भर बेकिंग पाउडर, जिससे जो दूध है वो अंदर तक फिल होगी। यदि अंदर तक फिल नहीं होगा तो आपका फायदा नहीं है। उसके बाद आपको खोए को अच्छे से मैश करना है, वो जो सॉफ्ट हो जाए, उसमें कोई क्रैक्स ना पड़े। उसके बाद आपको उसकी बॉल्स रेडी करनी है, एंड उसको आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, और इमीडिएटली आपको उसे चाशनी में डालना है जो बस हो। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में आपको ही गुलाब जामुन की रेसिपी मैंने अपने ब्लॉग में दी है। नेहा जी, आपने 500 से ऊपर आई बिलीव कुछ 502 वीडियोस आपकी ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे पोस्टेड है। तो आप कितने टाइम से कर रही हैं ये? आई थिंक 3,000 वाला है, तो 500 तो नहीं है एक चैनल पर, बट दोनों चैनल के मिलाकर समथिंग काफी सारे वीडियोस हो जाएंगे, 700 प्लस हो जाएंगे दोनों चैनल पर के बाद।
और जब स्टार्ट किया था तब मेरी बहुत स्पीड से वीडियोस अपलोड करती थी मैं, बट उसके बाद फिर थोड़ा धीमे धीमे मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, तो इसलिए समझिए 3 साल हो जाएंगे। ऑलराइट, सो मैडम आपको शुरू से ही खाना बनाने में दिलचस्पी रही है या फिर ये अभी कुछ सालों में ही आया है आपको दिलचस्पी के चलो खाना बनाया जाए? नहीं, खाना बनाना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन जो जनरल खाना होता है दाल रोटी चावल, ये मुझे बनाना नहीं अच्छा लगता था। एक्चुअली मेरी शादी से पहले ये जनरल खाना कहीं ज्यादा बनाया भी नहीं था, लेकिन बचपन में एक शो आता था तरला दलाल करके, सोनी पटाखे जो हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, तो तरला दलाल जो मैम थी वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाती थी। तो जब भी वो कुछ भी बनाती थी मैं उसे डेफिनेटली जरूर ट्राई करती थी बचपन से ही। आई थिंक मैं 6 या 7 क्लास में थी, तो शौक तो मुझे हमेशा से था कुछ नया कुछ डिफरेंट बनाने का, और सबसे हमेशा मुझे रहता जो इजी हो एंड क्विक बन जाए, रेसिपी है वो इजी वे में कैसे बन सकती है। यदि आप कोई ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हो और उसे कैसे आप बहुत ज्यादा इजी तरीके से बना सकते हो। और जो तरला मैम थी उनका बहुत रहता था कि वो उसमें शॉर्ट करती रहती थी कुछ ना कुछ, तो मैंने उन्हें बहुत देखा है। सो नेहा जी, आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी है, आप एक ब्यूटी ब्लॉगर भी है, आपका एक चैनल भी है आपका इस पर। सो आपको लगता है कि जो ब्यूटी वाला जो सेशंस जो आप लेती हैं, आपने नुस्खे बताए हैं, उसमें से सॉरी श्रेया, आपकी आवाज कुछ प्रॉब्लम है। आवाज नहीं भी है, आपको कई सारी ब्यूटी है, तो आपकी उस चैनल में कुकिंग का आया मैजिशियन गोपाल, तो मैजिशियन गोपाल आपकी तरफ से आवाज आ रही है? आ रही है, ओके। तो मुझे क्वेश्चन नहीं सुनाई दे रहा क्या? कोई बात नहीं, मैं फिर रिपीट करती हूँ। तो मैं ये कह रही थी, आपका एक ब्यूटी चैनल भी है, आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी है, तो आपने जो इतने सारे नुस्खे बताए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट ब्यूटी से रिलेटेड, तो इसमें से सबसे कामगर वाला जो नुस्खा हम कह सकते हैं वो कौन सा है? अब बहुत सारे अलग अलग ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे नुस्खे आते हैं कि आप बेसन लगाओ, आप हल्दी लगाओ, आप ये लगाओ, मलाई लगाओ, बहुत सारी है। तो इसमें से सबसे बेस्ट वाला नुस्खा कौन सा है जो सचमुच में काम करे और सचमुच में असर करता है? और लोग कोलगेट भी लगाते हैं, फिर पता नहीं कॉफी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, तो कौन सा नुस्खा सबसे ज्यादा यूजफुल है? हाँ जी, तो एक्चुअली आप कोई भी नुस्खा हुआ जब तक आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, तो और भी ज्यादा ड्राई करिए ड्राई फेस पर। तो ये ऑयली स्किन है और कोकोनट ऑयल अप्लाई करके अपनी फेस पर, उसके बाद उनके फेस पर एक्ने यूज करें। सबसे पहले चेक करेंगे आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एंड उसके बाद आजकल रिसेंटली मैंने भी बहुत ज्यादा चेक किया कि टिकटॉक पर या फिर और सोशल साइट पर कोलगेट है बहुत ज्यादा होते हैं, फेस पर डायरेक्ट लगा लेते हैं। उस टाइम तो आपको कुछ ब्राइटनेस हो सकता है, बट डेफिनेटली तो आपकी स्किन को खराब करेगा ही करेगा, क्योंकि जो भी चीज आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप खा नहीं सकते और उसे आप अपने फेस पर भी नहीं लगा सकते। तो आपको कुछ टाइम के बाद या अभी रिजल्ट ना दिखे, लेकिन कुछ टाइम फेस पर अप्लाई करेंगे। यदि फिलहाल पर आप अप्लाई करें जो चीजें हैं बहुत हमेशा रह सकता। हेलो,
तो आपके मुताबिक ये जो चीजें हैं, जैसे कोलगेट लगाते हैं, विटामिन ई की कैप्सूल्स उसमें डालकर लगाते हैं, तो वो शुरू में आपको रिजल्ट देंगे, फिर धीरे धीरे आपके स्किन की वजह खराब करने लगेंगे। ऑयल होता है अंदर, हम उसको कैप्सूल को नहीं लगा रहे हैं अपने फेस पर, हम विटामिन ई ऑयल को लगा रहे हैं, तो आप उसको सकते हैं। लेकिन और जो चीजें हैं जिसे आप खा नहीं सकते, उसे आप लगा भी नहीं सकते। एंड ये आयुर्वेद में आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको हमेशा बताया जाएगा, जो चीज आप खा नहीं सकते तो आप कभी भी अपने फेस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके मैम, सो मैं ये कह रही थी, आपने जो इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, इतने सारे आपने इसमें आपने शोज किए हैं या आपने वीडियोस डाले हैं आपके इसमें चैनल में, सो इतने सारे डिशेस में वो कौन सा ऐसा डिश है जो आपका पर्सनल फेवरेट? ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मेरे रिसेंटली आज अपलोड किया ढोकला, मुझे ढोकला बहुत अच्छा लगता है। अभी पानी पूरी अपलोड किया था, दोनों तरह की पानी पूरी अपलोड किया था, सूजी की और आटे की, दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जो भी बता कि आपको चाट पकौड़ी मिलते हैं, इंडियन चाट पकौड़ी, मुझे एक्चुअली में चाइनीज फूड इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे इंडियन चाट पकौड़ी और स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। तो जो भी मैं इस तरह का स्ट्रीट फूड बनाती हूँ वो सारा मेरा बहुत फेवरेट है। ट्राई करती रहती हूँ, तो उसमें मैंने कई सारे तरह के कस्टर्ड बनाए हैं, अलग अलग तरह के पुडिंग बनाई हैं जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। एक मैंने एक वीडियो में नाम दिया था, इतनी टेस्टी और नई रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी। एंड उस पर काफी तरह के कमेंट आए थे, मिक्स कमेंट थे, बट मैं गारंटी लेती हूँ कि आप उसे ट्राई करते हैं तो वो बहुत ही औसम लगे। जितने भी मेरे रिलेटिव ने उसे बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा वो बहुत ही अमेजिंग बनी थी। तो मैं बोलती हूँ कि इस बार आप ट्राई तो करके देखिए, एंड मिक्स कमेंट आते ही आते हैं, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। सो अभी आपने बताया आपको इंडियन फूड ज्यादा पसंद है, चाइनीज आपको कम पसंद है। सो अगर हम चाइनीज के बारे में बात करें तो चाइनीज में अजीनोमोटो, फिर कलर्स डाले जाते हैं। सो इन चीजों का हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि बच्चों को यही ज्यादा पसंद आता है, बच्चे क्यों, हमें भी यही ज्यादा पसंद आता है, हम घूम फिर के वही चाइनीज भेल, फिर वो चाउमीन, उनके तरफ ही हम मुड़ जाते हैं। सो कितना आपको इंस्पायर किसने किया? इंस्पायर कुकिंग के लिए या फिर मेरी जर्नी के लिए, जो यूट्यूब जर्नी थी? पूरी जर्नी के लिए, आपके कुकिंग के लिए, आपकी जर्नी के लिए। आज आपके 3,86,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, उसके लिए। एक्चुअली पहले मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर एक यूट्यूबर बनना है मुझे या यहाँ पर, बट मैं एक्चुअली ट्राई करी थी। मैंने पीजीटी किया था, तब मुझे लगता था कि मुझे जॉब करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, बट गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं थी उस टाइम पर। तो मैंने एक काम करते हैं कि घर से ही वर्क एट होम कुछ ढूंढते हैं। तब मैंने जब वर्क एट होम ढूंढा, मेरी सबसे ज्यादा हेल्प किया, जो मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट देते थे वो थे मेरे हस्बैंड। एंड उसी के साथ वो क्रेडिट में और दूंगी जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बहुत सपोर्ट दिया कि मैंने अपना यूट्यूब किया। तब से एक ही मेरी सिस्टर, मेरी छोटी बहन है नीतू, और मेरा भाई बहुत ज्यादा किया। और उसी के साथ जब तक आपके घर वालों का सपोर्ट आपके साथ नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा इसमें। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसी के साथ ही साथ जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फेस करते हो, तो जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो आपको कैसे कमेंट दे रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि ये मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ देखा है, वो लोग आते हैं और उनको इतनी ज्यादा हेट कमेंट मिलते, इतनी ज्यादा कि वो लोग चले जाते। तो मैं उसको ही बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी कि आज तक मैंने इतना बड़ा फेस कभी भी नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मुझे इतने अच्छे व्यूअर्स मिले और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया। यदि मुझसे कभी कोई गलती होती भी थी तो हमेशा उसमें यदि किसी ने हेट कमेंट लिखा है तो दूसरा भी उसको टोक देता था। गलतियां सबसे हो जाती हैं, कोई बात नहीं है, ये भी हो गई है, डिमोटिवेट क्यों कर रहे हैं तुम्हें। तो मुझे इतना अच्छा लगता था
बहुत अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन्होंने भी मुझे देखा, लाइक किया, शेयर किया, मुझे सब्सक्राइब किया, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। तो वो लोग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ ही साथ जब हमने ये जर्नी स्टार्ट, तब क्या हुआ, आप कहीं से कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपने भी स्टार्ट की थी, तो आपने देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आता है जब आपको कुछ भी रिजल्ट ही नहीं मिल रहा होता है। आप बस मेहनत किए जाते हो बट कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। आपने किया होगा। तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किया हुआ था, हैप्पीनेस कोर्स, जो श्री श्री रविशंकर जी का है। बट स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैंने उस कोर्स को किया था 2009 में, फिर उसके बाद मैंने कभी किया नहीं, उसे फॉलो नहीं किया। मैंने अगेन उसको जब यूट्यूब चैनल में स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा कि मेरे पास फिर से उसका कॉन्टेक्ट हुआ कि आप दोबारा से कर लो, तो मैंने उसको दोबारा से किया और मेरा चल नहीं जाता चैनल वगैरह का कुछ। जब आप दोबारा रिवाइज करते कोर्स, तो आपको क्या होता है, अंदर से हिम्मत मिलती है कि अब चाहे चले या न चले, हम इस काम में लगे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको, जब आप एक मेडिटेशन करते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं बोलती हूँ कि गुरु जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। सही बात है। सो मैं आपके हस्बैंड को और आपकी मदर-इन-लॉ को एक बहुत बड़ा सा थैंक यू हम सबकी तरफ से कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया कि आज हमारे बीच एक फीमेल पावर सामने बैठी है हमारे। सो आपको अगला सवाल ही पूछना चाहती थी मैं नेहा जी कि आपको ये जो न्यू डिशेस के जो आइडियाज है, ये कैसे आते हैं आपके न्यू डिशेस के आइडियाज? मतलब आपको कैसे लगता है कि इसको ऐसे करने से ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे करने से ये ऐसे बन जाएगा? आप कैसे आइडियाज निकालती हैं इतने सारे अलग अलग? ये तो ऐसे मुझे लगता है हर हाउस वाइफ का होगा। ये भी किसी को कुछ बच भी रहा है, मान लीजिए रात के दाल चावल भी बच गए हैं, तो उनको लगता है कि ये फिके ना, वेस्ट ना जाए, सब कुछ ना कुछ यूज हो जाए। तो आप उसको यूज करने का देखते हैं, आप उसको दोबारा प्रेजेंट करने की सोचते हैं, तो आप उसमें कुछ मिक्स एंड मैच करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ अच्छा और कभी कभी बहुत ज्यादा अमेजिंग भी क्रिएट होता है। एंड बच्चों की आजकल आपको पता है कितनी ज्यादा डिमांड होती है घर पे कि कुछ नया चाहिए, डेली नया चाहिए, तो हेल्दी हो, नया हो। आप पराठे में कुछ फिलिंग करते हैं, कभी सब्जियों में कुछ ट्राई करते हैं, कभी उनके लिए आटा नूडल्स बनाते हैं, तो आपको बहुत सारी नई आइडियाज होते हैं। तो उसके लिए आपकी फैमिली होती है और आपको बस किसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए बस भाग के निकल जाए हम यहाँ। सो यहाँ पर मैजिशियन गोपाल जी हमें कह रहे हैं कि कुकिंग के माध्यम से आप हमारे देश की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? कुकिंग के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि आपके पास कोई हुनर है या नहीं है, ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता। तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है, जिससे आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप अपने लिए खुद के लिए खड़े हो सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं, खाली कुकिंग ही हो, आपके पास कोई भी टैलेंट, एंड कुकिंग में तो एक बहुत बड़ा टैलेंट आपके पास है कि आप किसी भी जरिए किसी को खुश भी कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छा खाना प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात कुछ नहीं होती है किसी को सामने वाले को खुश कर देंगे। सो नेहा जी, ये तो था हमारी महिलाओं के लिए। तो आप हमारे देश के जो नौजवान है, जो यंगस्टर्स है और जो हमारे जेंट्स है जो फिलहाल क्वारंटाइन के देश में घर पे है, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, एक क्वालिटी की टाइम स्पेंड करने का। तो डेफिनेटली आप भी जाइए और अपनी वाइफ की हेल्प कीजिए, उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत बनाइए, जिससे उन्होंने तो आपके लिए हमेशा बनाया ही है। अब आप उनके लिए कुछ छोटा सा बना के दीजिए, जिससे एक बार वो खुश हो जाए, उन्हें लगे कि हाँ। इसके लिए जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा मेहनत करें, आप कुछ विदाउट फायर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, छोटा सा एक कप चाय भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का और अपनी वाइफ की सेवा करने का और उन्हें खुश करने का।
सो नेहा जी, हम सभी अभी घर पर है, सो हम सबके परिवार वाले भी घर पर है, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आपके हस्बैंड भी घर पर ही होंगे, सो उन्होंने आपको अब तक कौन सी डिशेस बनाकर खिलाए हैं? उन्हें वैसे ऐसा कोई भी शौक नहीं है खाना बनाने का, बिल्कुल भी नहीं है। बट उन्होंने मेरे लिए अभी हनी चिली पटेटो, उन्होंने भी हम लोगों ने मिल के बनाया था हनी चिली पटेटो, एक साथ किया था और उसका हमने ब्लॉग भी शूट किया था जिसे हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि चलो आज हम भी तुम्हारी हेल्प कराएंगे। बस ये जो दो वर्ड होते हैं कि चलो आज हम भी आपकी हेल्प कराएंगे, यही काफी होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। सो नेहा जी, एक अच्छा कुक होने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा कुक होने के लिए आपको एक अच्छा कुक होना जरूरी है। जब आप सभी तरह के खाने टेस्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट अच्छे नहीं लगते, आपको खाली मान लीजिए इंडियन अच्छा लग रहा है, सही नहीं लग रहा, तो आप चाइनीज को बनाओगे कैसे? आपको सभी तरह के खाने खाने का शौक होना चाहिए। आप कहीं भी नए स्टेट में जाए, वहाँ पे जो भी डिफरेंट मिल रहा है उसे आपको टेस्ट करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे आपको नए आइडियाज आते हैं। नए आइडियाज आएंगे तो डेफिनेटली आप बढ़िया बढ़िया खाने तैयार करेंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिलाएंगे। सो यहाँ म्यूजिशियन गोपाल जी हमसे पूछ रहे हैं कि नेहा जी, आप कुकिंग में सबसे बेस्ट मिठाई कौन सा बनाती हैं? कुछ भी मीठा, सबसे बेस्ट मीठा कौन सा बनाते हैं? मुझे जो लगता है वो है मलाई पूरी, मुझे काफी पसंद है मलाई पूरी और झटपट बन जाती है, इजी है। उसी के साथ चॉकलेट लावा केक या फिर आप ओवन में केक तैयार करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड पुडिंग एक मेरी बहुत फेमस रेसिपी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है ऑरेंज ब्रेड पुडिंग, वो मेरी भी फेवरेट है। वाओ, मैं भी खाना पसंद करूंगी ऑरेंज पुडिंग। ऑलराइट, सो नेहा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिश बनाई है, उसका वीडियो आपने यूट्यूब पर डाला है और शूट करते दौरान वो बहुत अच्छा दिख रहा है, प्लेट में सर्व करने के बाद ऐसा लग रहा है कि झपट लो अब बस, लेकिन जब शूट वूट कर लिया, सब वीडियो यूट्यूब पर डल गई, अब बारी आई खाने की, तब पता चला कि इसमें नमक कम है या मसाले अभी कच्चे रह गए हैं, तब कैसा लगता होगा? क्या कभी ऐसा हुआ है? वैसे ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि जब आप बहुत टाइम से कुकिंग करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि कितने मसाले जाएंगे इसमें। आपका हाथ ऑटोमेटिकली, इवन आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्पून आप डालते हो। लेकिन नमक एक ऐसी चीज है कि हो सकता है आप भूल ही जाओ उसमें ऐड करना, आप पूरा वीडियो भी शूट कर लो और उसके बाद रह जाए, ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एंड मुझे याद आ रहा है कि एक बार शायद मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मुझे पूरा वीडियो दोबारा से कट करके उसमें एडिट करना पड़ा था कि इसमें मैं नमक डालना भूल गई हूँ, तो मैंने उसमें ऊपर से नमक डाला था और उसमें दोबारा एडिट किया था कि यहाँ पर नमक जरूर ऐड करें, मैं भूल गई हूँ कि आप ना भूले। ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग इंसान हैं, गलती इंसान से होती है। और प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी लगेगी यदि इसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, मसाले नहीं है, लेकिन ये टेस्ट बता रहा है कि ये अच्छा लग रहा है खाने में। सो नेहा जी, जब आप कोई डिश नया बनाती हैं, सो यूट्यूब में उसे पोस्ट करने से पहले क्या आप उसे घर पे ट्राई करती हैं कि एक बार पहले घर पे ट्राई करके देखते कैसा बनता है, उसके बाद हम उसे यूट्यूब पे डालेंगे? ऐसा तो कितने बार ट्राई करती हैं आप? जो रेसिपीज हम लोग काफी टाइम से बनाते आ रहे हैं वो हम नहीं ट्राई करते, बट जैसे कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा बन गया, तो फिर हम उसे दोबारा बनाते हैं और फिर करते हैं। जैसे हमने कभी यहाँ पे म्यूजिशियन गोपाल जी कह रहे हैं, बोली मन। अच्छा बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा है यहाँ पे गोपाल जी ने कि नेहा जी, आप बता सकते हैं कि अगर खाने में कभी गलती से नमक ज्यादा हो जाए तो उस नमक को कम कैसे करें? हाँ जी गोपाल जी, बहुत ही सिंपल होता है। मान लीजिए सब्जी में या कोई भी
जिसमें भी लिक्विड है उसमें नमक ज्यादा हो रहा है, तो आप बस आलू को डाल दीजिए और थोड़ी देर गर्म कर लीजिए, तो आलू ऑटोमेटिकली सारा का सारा नमक ले लेता है। लेकिन यदि आप आलू को ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम पे आप आटे की गोलियां उसमें एक कपड़े में पोटली में बांधकर थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दीजिए, तो आटा भी बहुत जल्दी नमक कम कर देता है। यदि उसमें आप आटा भी ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल ही ड्राई है, तो आप उसमें फिर नींबू या फिर खटाई ऐड कर दीजिए, तो वो नींबू खटाई भी नमक को बहुत हद तक कम कर देती है। ओके, सो गोपाल जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप उसमें आलू भी डाल सकते हैं। मुझे भी आज पता चला। मैं इसलिए शुरू में ही नमक कम डाल देती हूँ ताकि जिसको चाहिए वो ऊपर से डाल लो। मैं खाना बनाने से बहुत दूर हूँ। मैं खाना खा सकती हूँ, बना नहीं सकती। लेकिन आपने अच्छी टिप बताई। आप मुझे खिलवा लो, आप मुझे खिलवा लो, चाहे कितना भी डिश आप मेरे सामने रख दो कि श्रेया ये खा के खत्म करना है, तो सब खा लूंगी। और ये कह दो कि अच्छा इसे बनाते कैसे है, ये इसे बना के कल खिलाओगी, मैं गायब ही हो जाऊंगी। मैं खाने से बहुत तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि खाना, कुकिंग भी एक कला है, एक आर्ट है जो हर एक इंसान में होता है, बट उसे जानने की देरी होती है। शायद मेरे में भी कहीं ना कहीं, मैं मैगी अच्छा बनाती हूँ, तो क्या पता मैं खाना भी अच्छा बनाना शुरू कर दूं किसी दिन। सो नेहा जी, मुझे आपसे अगला सवाल ये पूछना था कि आपने ब्यूटी ब्लॉगिंग भी शुरू करी है, आपका ब्यूटी का भी एक यूट्यूब चैनल है। सो आपके मुताबिक अगर अलग अलग टाइप के स्किन टाइप्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन स्किन होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का बहुत ही अच्छा होता है, और किसी का नेचुरल ग्लो आता है जबकि वो कुछ करते भी नहीं है फिर भी। सो आप एक परफेक्ट स्किन के लिए क्या जरूरी है, क्या खाना जरूरी है? क्योंकि अगर किसी को फेयर स्किन चाहिए तो लोग गूगल करते हैं कि फेयर स्किन के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो आपके मुताबिक, आप एक ब्यूटी एक्सपर्ट है, तो आपके मुताबिक एक अच्छा स्किन, जिसे मैं कहते तो फेयर ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छा स्किन पाने के लिए क्या करना जरूरी है? स्किन में दाग धब्बे ना हो, गड्ढे ना हो। आपकी स्किन भी हेल्दी है तो हमेशा ही बहुत ही अच्छी, चाहे फेयर हो या ना हो। आप कभी भी देख लीजिए, आपकी स्किन कोई भी ग्लो है, एक्ने नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी स्पॉट नहीं है, हमेशा अच्छी लगेगी। बहुत ही सिंपल होता है कि आपको एक रूटीन फॉलो करना होता है, या फिर हेल्थी रूटीन फॉलो करें। यदि आपको चीट डे रखना है तो आप वीक में एक बार रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नहीं है कि आप पूरा वीक ही चीट डे बना दें। आप बहुत ज्यादा स्पाइसेस खा रहे हैं, पूरे टाइम तला भुना खा रहे हैं, पानी का लेवल आपकी बॉडी में कम है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन यदि आप अच्छे से पानी पीने का ध्यान रखें, आपके फेस पे प्रॉपर ग्लो आएगा। और कोई भी आपका स्किन रूटीन हो सकता है, आप कोई भी स्किन रूटीन फॉलो कर, एक आपका मॉर्निंग स्किन रूटीन होना चाहिए, आपका नाइट स्किन रूटीन होना चाहिए। बस ये यदि आप 3 सिंपल स्टेप फॉलो कर लेते हैं कि आपको पानी प्रॉपर पीना है, आपको स्किन रूटीन रखना है और आपको हेल्दी खाना है। जैसे आप सैलेड खाते हैं और उसके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का आप देखिए बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपकी स्किन पर, क्योंकि वो आपकी स्किन को पूरी तरह से डिटॉक्स करती है। तो डिटॉक्स बहुत जरूरी है। तो नेहा जी, ये तो एक अच्छी, हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि हेल्दी स्किन के लिए आपको डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। उसके लिए आप डिटॉक्स और वैसे नेहा जी, हमने देखा है लोग पार्लर में जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्किन रूटीन्स होते हैं, वैक्सिंग, फेस वैक्सिंग, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैंने शायद मुझे पता भी ना हो, क्योंकि मैं कभी पार्लर नहीं गई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जो करती हूँ घर पे ही करती हूँ, खुद पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ, खुद का ही स्किन है, जो भी खुद को ही होगा। सो जो लोग बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं कि पार्लर जाना चाहिए, खुद की स्किन का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, लेकिन इन सब
केमिकल, ये जो चीजें होती है जो स्किन पर लगाई जाती है उन्हें उनके जो डेड स्किन है उसको निकालने के लिए, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि स्किन को एट द एंड डैमेज करते हैं कहीं ना कहीं। शुरू में वो बहुत अच्छा लगता है कि हमने, अरे वाह हमने आज फेशियल करवा लिया है, क्या ग्लो आ रहा है, कि सामने वाले बंदे को लाइट की जरूरत नहीं है, हम खड़े हो जाए सही रोशनी आ जाए, इतना स्किन में ग्लो आ रहा होता है। लेकिन वो धीरे 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 करके स्किन को उसकी आदत सी पड़ जाती है और फिर वो केमिकल आपकी स्किन, मतलब ड्रग है वो, तो उसको आपका स्किन मांगता है वो ड्रग। तो आपके मुताबिक क्या करना चाहिए कि हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए कि एट द एंड हमारी स्किन उस ड्रग की आदी ना हो जाए और घरेलू नुस्खे से ही हम हमारे फेशियल्स और भी जो भी सारी चीजें हैं उन्हें करते रहे ताकि हमें स्किन हेल्दी रह सके और हमें पार्लर जाने की जरूरत ना पड़े? हाँ जी, मैं तो घरेलू नुस्खों को ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन यदि आपको कभी कभी इस तरह का कोई भी रूटीन लेना है, पर रूटीन इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं। बट आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि वो केमिकल फ्री ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ऐसा नहीं पार्लर में सारे केमिकल वाले ही ट्रीटमेंट लगते हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप पीछे इंग्रेडिएंट चेक कर सकते हैं, एसिड चेक कर सकते हैं। हम आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं कि आप ये सारे लिस्ट चेक कर सकते हैं कि पैराबेन वगैरह ना हो उनमें। आप ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में और आपको अच्छे पार्लर की पूरी लिस्ट के साथ ये सब कुछ मिल जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ भी ऐसा यूज नहीं करते। लेकिन हाँ, ये वाले ट्रीटमेंट पे आपको अपनी स्किन को आदी नहीं बनाना। यदि आप एक बार आदी बना लेंगे या हर मंथ करा रहे हैं या फिर आप हर 15 दिन में इसको बार बार ले रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी। आप कोशिश कीजिए घरेलू नुस्खों को ज्यादा अपनाएं। जो भी आप खा रहे हैं, बेस्ट खा रहे हैं, जो भी फ्रूट खा रहे हैं, जो भी जूसेस ले रहे हैं, आप उनको ही अप्लाई कर लीजिए। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप वो फ्रेश फ्रूट अप्लाई कर लीजिए जो भी आप खाते हैं। कुछ भी खाइए और थोड़ा सा लीजिए, लगा लीजिए, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा होता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, वाटर लेवल भी सही रहता है और जब आप उसे स्किन पे लगा तो स्किन रूटीन बन जाता है आपका। सो नेहा जी, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, इतनी ग्लो कर रही है, आपके स्किन में एक भी दाग धब्बा नहीं है, एक भी पिंपल नहीं है, इतनी फेयर है आप। सो आपका ब्यूटी सीक्रेट क्या है? आपसे मुझे बताओ, किसी को मत बताना। ऐसा नहीं है, बट आप जब अपनी स्किन केयर करते हो तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। जैसे मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, मैं ग्रीन टी लेती हूँ डिटॉक्स करने के लिए अपनी बॉडी को, और इसके साथ ही साथ मेरा फेस पैक है मेरा स्किन रूटीन पर, तो मैंने खुद अपने ब्लॉग में शेयर कर रखा है माई स्किन केयर रूटीन। मैं थोड़ा सा मसूर की दाल, थोड़ी सी चावल और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी और चंदन एक फेस पैक बनाकर रखती हूँ, जिसे मैं अक्सर यूज करती हूँ अपने मॉर्निंग स्किन केयर में। और रात को हमेशा अपनी स्किन को साफ सुथरा क्लीन करके ही सोती हूँ। फेस वॉश का यूज करती हूँ, साबुन का यूज नहीं करती हूँ, या फिर जो फेस लोशन होते हैं जैसे आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन से बना सकते हैं उसका यूज करती हूँ। केमिकल से मैं अपनी स्किन को दूर रखती हूँ, एक अच्छा रीजन। आपकी भी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग है। मुझे आपका रूटीन पता चल गया है, अब मैं वही फॉलो करूंगी। अच्छा तो नेहा जी, जाते जाते आप हमारे, हाँ तो मैं ये कहती नेहा जी, जाते जाते हम हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत ही अच्छा सेशन आज हमने देखा है जिसमें हमने खाने पीने के बारे में बातें की है, और खाने के साथ साथ अगर खाया जाए अच्छे से तो हम हेल्दी भी रहेंगे, हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी। सो खाना बहुत जरूरी है। जो इंसान 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाता है उनकी स्किन कहीं ना कहीं सूख सी जाती है। जैसे एक एप्पल होता है, वो नया नया कितना अच्छा लगता है, देन फिर वो सूख जाता है कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद। उसे प्रॉपर मॉइस्चर जो पेड़ों पे लगने के बाद जो उसको मिलता रहता है वो नहीं मिल पाता, वो सूख जाता है। सो हमें हमारी बॉडी को फ्यूल देना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है, जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे, ग्लो करती रहे। आज हमने वो दोनों चीजों को कवर की है, खाना भी और स्किन भी। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स के भी जो भी सवाल थे वो सारे सवाल का जवाब उन्हें मिल गया, मुझे भी मेरे सवालों के जवाब मिल गए और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ सारे जवाबों से। मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। बहुत बोर किया मैंने अगर आपको शायद अगर किया हो।
रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत न्यू था, डिफरेंट था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा आपके साथ। तो थैंक यू। थैंक यू नेहा जी, आपने आपका समय दिया उसके लिए थैंक यू। सो एवरीवन, अगर आपको न्यू न्यू डिशेस ट्राई करनी है या फिर आपको अच्छा लगता है खाना, तो आप अपने फ्रेंड से, अपनी मम्मा से या अपने सिस्टर से जो भी अच्छा खाना बनाते हैं, अगर आपको खुद को भी ट्राई करना है तो प्लीज आप यूट्यूब पर इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स नेहास किचन विला। 386 के सब्सक्राइबर्स है ऑलरेडी एंड साथ ही इनका ब्यूटी चैनल भी है। सो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैप्शन में मैं इनका चैनल मेंशन कर दूंगी, आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही फॉलो करते रहिए नेहा जी को और मुझे भी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आपने अपना समय दिया और नेहा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे शो पर आई। मैं आपकी आभारी हूँ। सो इसी के साथ अलविदा लेंगे हमारे सभी व्यूअर्स से और मिलेंगे फिर कभी किसी एपिसोड में, शायद सीजन 2। सो थैंक यू सो मच नेहा जी। क्या जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो कर ले और एक बार यूट्यूब पर जाकर जरूर चेक करें, मेरे दोनों चैनल को आप चेक कर सकते हैं। एक का नाम है नेहा, दूसरे का नाम है आयुर्वेद नेहा। तो प्लीज मुझे फॉलो कर ले और अच्छे अच्छे कमेंट आप कर सकते हैं, नीचे आपको कुछ जानना है मैं डेफिनेटली आपको रख देंगे। थैंक यू सो मच नेहा जी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। सो इसी के साथ थोड़ा बहुत बीच में नेटवर्क का इशू था, उसके लिए हमारे व्यूअर्स को हमारे बहुत ही पेशेंट थे इस दौरान। थैंक यू सो मच फॉर व्यूअर्स, थैंक यू।